Today we continue to look at our own country, and we'll look at those aspects, important aspects relating to administrative system of Pakistan, which we did not touch upon last time. This includes a little bit more about the federal and provincial relationships, our budgetary system, how we manage our finances and raise our revenues, that is, and also the developments which have recently taken place in our local system, in our local government system. So first of all, about the federation-province relations. Our constitution distributes the legislative powers between the federation and the provinces as under. Number one, Parliament may make laws for the whole or part of Pakistan, so not restricted. It can make laws for a part of Pakistan also, exclusively for a certain area or a district or a province, and it can make overall laws covering all the federal territories, the whole of Pakistan. Whereas, similarly, the provincial assemblies can make laws for the whole of the province or part thereof, very much like the federation, which is empowered to make laws all over the country. Provinces जो है वो अपने laws province की हद तक independent है बनाने में, और प्रोविंस के किसी पार्ट में भी अपने लॉज लागू कर सकते हैं अगर वो कोई ऐसा लॉ बनाना चाहें जिसको प्रोविंस पूरे प्रोविंस पे लागू नहीं करना चाहता, सिर्फ कुछ हिस्सों पे लागू करना चाहता है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किया गया है कि ये ऐन मुमकिन है, ये उनके पावर्स में शामिल है. However, the parliament shall have the exclusive right to make laws with respect to any matter born on the federal legislative list. यानी ये जो लिस्ट जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, मुंसलिक है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उसका इंटेग्रल पार्ट है, और जिसमें उन सब्जेक्ट्स का जिक्र किया गया है जिन पे फेडरल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, उसकी एक्सक्लूसिव राइट है वो, और कोई उसको टच नहीं कर सकता. उन सब्जेक्ट्स पे सिर्फ कानून जो है सिर्फ और सिर्फ फेडरल हुकूमत बनाएगी. The provinces cannot infringe on these subjects under any case. प्रोविंसेस की ये राइट नहीं है कि वो उन सब्जेक्ट्स पे कोई भी लॉ बनाए जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में दर्ज हैं. उन पे जो भी लेजिस्लेशन होगी वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट करेगी. So that is the idea, the logic behind having these lists, the federal legislative list and the concurrent legislative list. So let us have a look at them. Before that, how does the government work? It frames certain rules of business. So there are rules of business for the parliament and there are rules for business for the executive. All action taken in any federal secretariat has to be according to the rules of the business. Any decisions taken by a minister or the cabinet or the prime minister have to be in keeping with the rules of the business. So let's see.
Under the Constitution, the executive authority of the Federation extends to all matters in respect of which Parliament has the right to make laws on recommendations of the federal government. यानी वो सब्जेक्ट्स जाहिर है वो लेजिस्लेटिव लिस्ट में है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में भी हैं और कंकरेंट में भी हैं. कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि उन सब्जेक्ट्स पे फेडरल गवर्नमेंट भी यानी पार्लियामेंट भी और प्रोविंशियल असेंबलीज भी लेजिस्लेट कर सकते हैं और उन पे फेडरल एग्जीक्यूटिव भी एक्शन ले सकता है और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव भी उनको इंप्लीमेंट करा सकता है. सो दैट इज अ कंकरेंट पावर. अब ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है चीजों को इंप्लीमेंट करवाने की, वो उस हद तक फेडरल गवर्नमेंट में वेस्टेड है जिन सब्जेक्ट्स का जिक्र फेडरेशन की रेफरेंस से दोनों लेजिस्लेटिव लिस्ट में है. फेडरल लिस्ट तो एक्सक्लूसिव हो गई और कंकरेंट जो है इज शेयर्ड विद द प्रोविंसेस. पार्लियामेंट में बाय लॉ confer on officers and authorities subordinate to the federal government that executive power. वो पार्लियामेंट अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को या अथॉरिटीज को, let us say, because parliament is sovereign, it can confer it to the officers working in the federal government, the secretaries, the deputy secretaries, the directors. हर एक की पावर जो है वो लिखी हुई है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. अगर एक पर्टिकुलर ऑफिसर है उससे ये भी पता होता है या बताया गया होता है और रूल्स ऑफ बिजनेस की तशरीह में लिखा हुआ होता है आगे जो रूल्स बनते हैं कि जी आप इस हद तक खर्चा कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपकी पावर्स में नहीं है. उसको फाइनेंशियल डेलीगेशन रूल्स भी कहते हैं. इसी तरह आप क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, किस हद तक किस तरीके से आप पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराते हैं फेडरल गवर्नमेंट की, या जो लेजिस्लेशन हुई है उन सब्जेक्ट्स पे जिन पे फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है, आपको अथॉरिटी दी जाती है अफसरान को कि आपने इन पर अमल दरामद कराना है, इसलिए आपको ये अथॉरिटीज दी गई हैं. Other instruments made and executed in the name of the president are to be made by the federal government. इसके अलावा कोई और अफसरान के अलावा कोई और भी ऐसी चीज एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट करेगी उन सब्जेक्ट्स के मुताबिक in the name of the president. क्योंकि हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है तो सब एक्शन जो है वो बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है. कई मर्तबा तो प्रेसिडेंट को पता ही नहीं होता, लेकिन प्रेसिडेंट को पता होना भी नहीं चाहिए. बट टेक्निकली स्पीकिंग एवरीथिंग हैज टू बी इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ट्रीटी कर रहे हैं किसी और मुल्क के साथ, या आप कॉमर्स और ट्रेड के बारे में कोई स्पेशल कंसेशंस दे रहे हैं किसी मुल्क को, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक स्टेटस होता है, तो दैट इज डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट बट साइंड बाय द कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. So other instruments, such instrument which I mentioned in case of trade, similar instruments, बाकी मिनिस्ट्रीज के हवाले से भी कई होते हैं जो दूसरे मुल्कों के साथ किए जाते हैं. The federal government may also regulate the allocation and transaction of its business and may, for the convenient transaction of that business,
delegate any of its functions to officers or authorities subordinate to it. अब फेडरल हुकूमत जो है वो अपने इख्तियारात अफसरान को दे देती है कि जी आप इनका इस्तेमाल करें, और साथ ही तरीक़ाकार भी वज़ा करती है, और उसको रूल्स ऑफ बिजनेस कहा जाता है कि आपने किसी भी चीज़ पे डिसीजन लेने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। आपने अगर कैबिनेट में एक समरी भेजनी है तो आपको किस किस से कंसल्ट करना है, क्या लॉ डिवीजन से कंसल्ट करना है, क्या फाइनेंस डिवीजन से कंसल्ट करना है, उसके बाद फाइनल डिसीजन के लिए आप अप्रोच करेंगे कैबिनेट को। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रूल्स ऑफ बिजनेस में लेड डाउन है। रूल्स ऑफ बिजनेस में ये भी लेड डाउन है कि कौन सी मिनिस्ट्री का क्या काम है, उसके झैली अदारे कौन से हैं, और उस मिनिस्ट्री ने किस तरीके से जो भी उसको ड्यूटी सौंपी गई किस तरीके से वो निभानी है। सो द रूल्स ऑफ बिजनेस आर अ कॉम्प्रिहेंसिव, दे आर प्रॉब्ली the rules of business of government of Pakistan would be spread over like 50 pages or so. They're so comprehensive, telling about each and every ministry, the details of what it is to do, what kind of organizations are subordinate to it. And then you have other rules framed after this, following this, which spell out clearly the administrative and financial powers of each and every government officer. यानी अगर आप एक महकमे को हेड कर रहे हैं, आप उसके डायरेक्टर हैं, तो आपको पता होगा कि आप किस एडमिनिस्ट्रेटिव, आपकी क्या पावर्स हैं, आप किस बंदे को डिसिप्लिन कर सकते हैं, उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं, किस लेवल के लोगों को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और आपकी क्या पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स। क्या आप करोड़ों का एक्सपेंडिचर विदाउट कंसल्टिंग एनीवन कर सकते हैं या नहीं। तो ये सब कुछ लिखा होता है। अब थोड़ा सा जल्दी से हम फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और इन लिस्ट को देखते हैं। Federal legislative list consists of two parts, 1 and 2. There are 59 subjects in part 1 and 8 subjects in part 2. यानी टोटल आपके 67 सब्जेक्ट्स हो गए। और पार्ट 1 में जो हैं उनमें डिफेंस है, डिफेंस की इस्टेब्लिशमेंट है, इंपॉर्टेंट वंस, एक्सटर्नल अफेयर्स को कंडक्ट करना, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री का काम, matters pertaining to nationality and migration and immigration. Yani who is a national of Pakistan? Who can become a national of Pakistan? How do people go abroad? How do people come in? Pakistanis immigrating or emigrating. फिर टेलीकम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आजकल तो इट्स सो इमेंस, उसके इतने फेसेट्स हो गए टेलीकॉम के। That has to be controlled by the federal government. So it is the federal government which is awarding the 3G and 4G licenses. फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे पब्लिक सर्विस में, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकेगी। और किसका काम है उनको तलाश करना, रिक्रूट करना? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। और आपको मालूम है कि इसी तरह की प्रोविंशियल लेवल पे भी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है। सो वेरी इंपॉर्टेंट आइटम। Then of course the ombudsman, will be talking about it in more detail later on. Nuclear energy extremely important, not with the provinces, with the federal government.
because it has to have all that big structure of safety around it, a command and control system where nothing should go wrong. It's a very sensitive and dangerous matter. Navigation, carriage of goods, stock exchange, very important. Regulates the whole public sector companies and their shares. So that is one of the most critical areas of finance and business. This regulatory body, the stock exchange, is with the Federation, this subject. और फिर पार्ट 2 में आपके आ जाते हैं फेडरल प्रोविंशियल कंसल्टेटिव मैकेनिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट है ये आजकल के ज़माने में, जब इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोविंसेस और फेडरेशन में आ जाती हैं. उसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक मैकेनिज्म है, इसके अलावा और भी हैं, विल जस्ट लुक एट देम. रेलवेज, अगेन ऑल ओवर द कंट्री you got this network of rail tracks and railways moving around day and night. So a federal subject. Minerals, oil, as far as the petroleum is concerned, mineral oil, because other minerals are also on the provincial list. Natural gas, again it is the federal government which is going to do all kinds of exploration for petroleum products, be it oil or be it gas. And then there is some specific industries which are only within the ambit of the federal government. Moving on to the concurrent list, यानी वो सब्जेक्ट जिन पर प्रोविंस भी और फेडरेशन भी लेजिस्लेट कर सकती है, वो अब हम देखते हैं कि कौन से हैं. और इसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं, 47 subjects on which both the province and the federal government, that is the parliament and the National Assembly of respective provinces, can legislate. Criminal laws, criminal procedures, civil procedure, marriage and divorce, bankruptcy, arbitration, contracts, trusts, transfer of property, arms, firearms and ammunition, explosives, social welfare, labor welfare, archaeology, educational curricula and syllabi, standards, Islamic education, sanctioning of films and exhibitions, legal, medical and other professions. अब ये देखिएगा कि these are closer to the life of the people. Most of these subjects are very close to the life, personal life of the people and the services they need. So the procedures governing laws relating to crime and property are with the provincial governments. Provincial government को ये इख्तियार है कि वो कवानीन बनाए क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आमतौर पे ऐसे कवानीन में क्राइम की नोयत दर्ज होती है और उसकी सज़ा दर्ज होती है. इसी तरह प्रॉपर्टी के लिए कि कैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सेटल करना है, क्या तरीक़ाकार है. कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो प्रोविंशियल है. बैंक्रप्सी, यानी अगर कोई फर्म जो है वो दिवालिया हो जाती है, उसका तरीक़ाकार क्या है. तो ये चीज़ें जो है कोर्ट्स में जाती हैं. सो कोर्ट्स जो डे टू डे प्रॉब्लम्स पे सिटीजन्स के डिसीजंस लेते हैं या एडजुडिकेट करते हैं, जुडिशरी so close to the people, that is on the concurrent list. So both the federal government and the provincial government can make these laws. इसी तरह एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेलफेयर एक्टिविटीज जैसे सोशल वेलफेयर, प्रोविजन ऑफ
social nets to the people, लेबर को देखना, लेबर के लिए फैसिलिटीज, लेबर के लिए कॉलोनीज, लेबर के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स, वट एवर, सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन कायम है सब प्रोविंसेस में, एंड देयर आर social security commissioners who look after social security issues. So social services are an extremely important aspect, and especially so to the labor class. तो ये भी प्रोविंस की डोमेन में ज़्यादातर होता है. ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकती या इजाफी इमदाद नहीं दे सकती, लेकिन प्राइमरीली ये डोमेन समझा जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का. And another point, in case of repugnancy or conflict between a federal law and a provincial law, the federal law shall prevail. सीधी सी बात. अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है प्रोविंशियल लॉ फेडरल लॉ को, तो वो जो शिक है जिसमें कंफ्यूजन आ रहा है वो फेडरल लॉ की प्रिवेल करेगी. प्रोविंशियल लॉ की कोर्ट्स नहीं मानेंगे. Federal laws in that sense are superior to provincial laws, so that in case of any conflict or differences between the two, it shall, the federal law shall prevail. Then the provincial assembly has the exclusive power to make laws with respect to any matter not borne on the federal or concurrent legislative list. और इसको रेजिडुअल सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, यानी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, और ये नए नौयत के सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसका ना तो जिक्र है फेडरल गवर्नमेंट का कि लेजिस्लेटिव लिस्ट में, फेडरल लिस्ट में, और ना ही जिक्र है कंकरेंट लिस्ट में. उसका क्या होगा? सो in such cases, it is the full powers of the provinces to legislate on it. वो automatically provinces का subject बन जाएगा. अब वो हम mechanisms की बात कर रहे थे कि province और federation में mechanisms क्या है ऐसे कि उनको करीब लाया जाए, उनको करीब रखा जाए और एक smooth तरीके से federation operate करे. एक है Council of Common Interest provided by the Constitution. The Council of Common Interests has a high-level representation of federal and provincial governments on it, and the members are appointed by the President, and you'll find the Chief Minister or the governors on this. What kind of clashes can arise between the federal and the provincial governments? What are the common interests of the two? उन चीज़ों को पे डिलिबरेट करने के लिए, उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ये मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया. और हम ये देखते हैं कि वो चीज़ें ज़्यादातर दर्ज हैं जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसके पार्ट 2 में. मसलन रेलवेज का जिक्र हुआ, ऑयल, नेचुरल गैस, और कुछ कंकरेंट लिस्ट से, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसी रिलेटेड चीजें जो उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेटेड हो. तो इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसमें इस किस्म की चीजों में क्लैश ऑफ व्यू पॉइंट्स पैदा हो सकता है, डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं. वाटर एंड पावर का जो सेक्टर है, प्रोविंसेस कैन से वी आर नॉट गेटिंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी दैट वी शुड बी गेटिंग. सेम फॉर पेट्रोलियम. मिनरल्स को कैसे ट्रीट करना है आपने. सो इन ऑर्डर टू avoid or to amicably settle disputes between the provinces and the federation, this Council of Common Interest meets
whenever agenda is ready and there is enough material to discuss, it meets, deliberates on the problems or the disputes and comes to a conclusion or a decision. So when the highest representatives of the provinces are there, the decision is bound to prevail because it has been taken with the concurrence of everyone. और ये कंप्लेंट्स भी आ सकती हैं, यानी कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह सकती है कि मेरे साथ इस मद में इस तरीके से ज़्यादती हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकती है कि प्रोविंसेस ने कहीं एक्सेसेस किए हैं या गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की हुई थी उनको नहीं फॉलो किया, खास तौर पे जहां तक कॉन्करेंट लिस्ट का तल्लक है या इवन फेडरल लिस्ट का। अगर आप कोई फॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन के बारे में गाइडलाइंस देते हैं एंड दे आर नॉट फॉलोड, so it's not just the provinces who may have certain complaints. It's very likely that the federal government may want to raise some issues also with the provinces. So this is a very important machinery that has been provided for in the Constitution to manage and try to settle these disputes. Then the National Economic Council. Primarily this is about economics, about planning, about how to go ahead, about all those visions of economic growth, high economic growth, sustainable economic growth. So the Constitution also provides for a National Economic Council with high-level representation from the Federation and the provinces, charged with the duty to review the overall economic conditions of the country. तो ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है ये मीट करती है, हाईएस्ट लेवल की रिप्रेजेंटेशन है प्रोविंसेस से इस पर और फेडरेशन से, और ये डिसाइड करती है और देखती है कि इस वक्त क्या इकोनॉमिक हालात है, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ रेट, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, how much resources are we collecting, what development plans should we have, which way should the economy be moving, what should be the direction of the economy, what things we should focus upon, what subsidies we should be giving, things like that. It also formulates plans with respect to financial, as I said, commercial, social and economic policies with a view to tendering appropriate advice to the Federation and the provinces. तो ये गाइडलाइंस दे रही है इकोनॉमिक हालात को देखकर फेडरेशन को भी और प्रोविंसेस को भी कि जनाब इस तरीके से हम चलेंगे तो बेहतर रहेगा. सो दैट इज अनदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां आप रिव्यू कर सकते हैं अपने मुल्क की इकोनॉमी को, नया डायरेक्शन दे सकते हैं अपने मुल्क की इकोनॉमी को, और गाइडलाइंस दे सकते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में, कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में, सोशल वेलफेयर के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में. सो it has to be staffed by the highest representatives of the federal and provincial governments. And now very important intervention, and very important also with respect to the local government in our country, the National Finance Commission. The Constitution provides for the constitution of a National Finance Commission composed of the Federal Finance Minister, the Provincial Finance Ministers, and such other persons as may be appointed by the President after consulting the governors. तो एक बॉडी जिसको नाम दिया गया नेशनल फाइनेंस कमीशन का, वो मार्ज़े वजूद में आ गई है और इस वक्त काम कर रही है.
कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन था, उसको हेड करते हैं जो भी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और चारों प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स इस पे होते हैं। इसके अलावा आमतौर पे दो मेंबरान और हर हुकूमत उस पे देती है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मामला है हर हुकूमत के लिए कि उन्हें फेडरल किटी में से, फेडरेशन के पास जो टैक्सेस जमा हो रहे हैं उसमें से कितना किसको शेयर मिलेगा। तो नेशनल फाइनेंस का मोटा कमीशन का मोटा काम आप यूं समझिएगा कि वो आपस में बैठकर लोग सारे डिसाइड करते हैं कि हमने किस क्राइटेरिया पे, किस फॉर्मूला को फॉलो करना है टू डिस्ट्रीब्यूट द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सर्टेन टैक्सेस which are to go to the provinces. उसका कितना शेयर हर प्रोविंस को जाएगा और फेडरेशन को कितना शेयर जाएगा। तो ये जो क्योंकि पैसे का मामला है, दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फोरम जहाँ पे बड़े लड़ाइयाँ और डिस्कशंस और सब कुछ होता है। और कोई कहता है कि जी मुझे पॉपुलेशन मेरी ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। कोई कहता है मैं बहुत बैकवर्ड हूँ प्रोविंस, मुझे ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए। सो डिफरेंट क्राइटेरिया फ्रॉम टाइम टू टाइम आर इवॉल्व्ड एंड फॉलोड टू कम अप विद अ फेयर शेयर फॉर ईच द प्रोविंस। कई प्रोविंसेस कहते हैं हम इतने टैक्सेस जनरेट कर रहे हैं, फेडरेशन के लिए हमें ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। प्रोविंसेस कहते हैं हम इतना रॉ natural resources generate कर रहे हैं, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, you know, things like that. So the National Finance Commission is charged with the duty to make recommendations to the President as to कौन से points पे the distribution between the Federation and the provinces of the net proceeds of the following. किन चीज़ों की? Taxes on income, यानी income tax जितना भी collect होता है पूरा मुल्क में, उसमें से कितना शेयर प्रोविंसेस को जाना चाहिए। टैक्सेस ऑन सेल्स एंड परचेजेस, जिसको हम जीएसटी भी कह रहे हैं आजकल। एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन एंड सच अदर एक्सपोर्ट्स। कॉटन तो किसी ज़माने में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था हमारा, शायद अभी भी हो। सच ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर नई कोई टैक्सेस प्रेसिडेंट लगाता है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। उनसे जो रेवेन्यूज आएंगे, पैसे होंगे, वो भी इनमें शामिल हो जाएंगे। एंड देन यू विल डिसाइड who gets how much. और इसी तरह एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होती है हर प्रोविंस में, यानी जो पैसे प्रोविंस के पास आ जाते हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से मिले हों, चाहे प्रोविंशियल टैक्सेस से उन्होंने रेज किए हों या अदर सोर्सेज से, तो आगे उन्होंने इन पैसों को एलोकेट करना है डिस्ट्रिक्ट्स को, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट इज द मेन टियर ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, द हाईएस्ट टियर। तो उस लेवल पर जाकर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का बिल्कुल वही काम है जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का, और कुछ इसी किस्म की उनकी भी कॉम्पोजिशन होती है। यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रोविंसेस को इन्वॉल्व कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को इन्वॉल्व करके उनकी राय सुनकर कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनके क्या एस्पायरेशन है, डेवलपमेंट बजट्स हैं, कुछ फार्मूला बनाकर उस फार्मूले के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट को उसका शेयर मिल जाता है। शायद बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को ज़्यादा मिले, अच्छा जैसे पंजाब में बहावलपुर वगैरह ज़्यादा बैकवर्ड समझे जाते, तो वहाँ शायद ज़्यादा उनको वो क्राइटेरिया फॉलो करके कुछ ज़्यादा रकम मिल जाए। सो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। अब थोड़ा सा अबाउट द फेडरल बजट मेकिंग प्रोसेस, ये a little bit more detail than we did for other countries, because now we are talking about our own country. तो ये एक साइकिल होता है बजट का, जिस दौरान बजट को कंप्लीट करना होता है,
फिर असेंबली में पेश करना होता है। और उसके कुछ स्टेप्स यहाँ हैं। बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउटलाइनिंग द एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग ईयर। यानी बजट होता क्या है, सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि हमारे अगले साल हुकूमत के ये रिसोर्सेज होंगे, इतने पैसे इकट्ठे कर पाएगी, ज़राए भी ये होंगे जहाँ से पैसे आएंगे, और दूसरी साइड पे हुकूमत का प्लान खर्चा ये है और कहाँ कहाँ खर्च होना है उसका जिक्र होता है। सो दिस इज द बजट। इट ऑल्सो रिपोर्ट्स ऑन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर इज जस्ट एंडेड। यानी जो साल अभी ख़त्म हुआ है, पिछले साल के असल में ये जो बजट होता है इसमें तो एस्टिमेट्स होते हैं, क्योंकि अभी वो एक्सपेंडिचर सारे होने हैं, रेवेन्यूज आने हैं। हो सकता है कम पैसे कलेक्ट हों, जितने आपने समझे उतने ना हो सकता है ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएं या कम पैसे खर्च हों। तो जब साल ख़त्म होता है तो एक्चुअल पे एक स्टेटमेंट बन जाती है। तो फेडरल बजट में पिछले साल के एक्चुअल फिगर्स भी पेश किए जाते हैं। और पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है दैट starts on July 1 and ends on June 30. We see that different countries have different financial years. Some countries follow calendar year as a financial year. Some countries start it in April. So in Pakistan, it's from July to June, from beginning of July to end June. और जो अगले साल का बजट बनना है उसका एक्शन जो है, जो प्लानिंग है, जो प्रोसेस है, सिस्टम है, वो इसी साल रवां साल में अगले साल के लिए रवां साल के अक्टूबर में शुरू हो जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ बजट फॉर्मेशन स्टार्ट्स एज अर्ली एज अक्टूबर फॉर इन एनी गिवन ईयर। सबसे पहली चीज जो होती है बजट कॉल सर्कुलर, क्योंकि ये सारा काम फाइनेंस डिवीजन करती है। वो एक सर्कुलर भेजती है बजट के बारे में और मिनिस्ट्री इसको तमाम को कहती है कि जनाब अब आप ये काम शुरू कर दें। सो द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द बजट इज द इशुएंस ऑफ द बजट कॉल सर्कुलर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट इज इशूड टू ऑल मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स आमतौर पर मिनिस्ट्री के नीचे होते हैं, और एजेंसीज हो सकती हैं, मसलन रेगुलेटरी एजेंसीज वगैरह, इन सब को वो कहते हैं जी कि आप अब ये काम शुरू कर दें। A detailed timeline is also given in the BCC for completion of various stages of the budget. Agencies are required to submit a statement of, वो बता देते हैं कि जी आपने ये काम इस वक्त तक कंप्लीट कर लेना बजट मेकिंग के हवाले से। तो अगर आपने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, आप उन्हें बताएंगे जी नवंबर तक हमें या दिसंबर तक हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता जाता है और आखिर में जाके मई में सब कुछ फाइनलाइज होके असेंबली को पेश होना होता है। तो क्या क्या मांगते हैं ये? परमानेंट एक्सपेंडिचर ऑन द करंट बजट। करंट बजट वो होता है जो आपकी तनख्वाहों पे और जो ऑन गोइंग एक्सपेंडिचर है उस पे होता है। लेकिन अगर आप कोई नया काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, उसको डेवलपमेंट बजट कहते हैं। तो वो मांग रहे हैं परमानेंट एक्सपेंडिचर ऑन द करंट बजट के आपके ख्याल में कितना खर्चा अगले साल आपकी तनख्वाहों पे और आपको काम चलाने के लिए जो जो भी दरकार है, मसलन गाड़ियां हैं या आप किराया कहीं दे रहे हैं या आपके कोई फंड्स और चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, तो वो सब चीज़ का एस्टिमेट बना के आपने हमें बताना है। प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑन एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और जो आप तरक्कियाती काम इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी तरक्कियाती काम को करने के लिए मुद्दत दरकार होती है, एक दिन में नहीं होता। तो अगर आप का एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, आपने आधा कंप्लीट कर लिया इस साल, उसका 1/4 और करेंगे, अगले साल ख़त्म हो जाएगा, तो आप बताइए कि इसके लिए आपको कितने पैसे दरकार है इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ऑन गोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्या दरकार है। देन प्रपोजल्स फॉर न्यू एक्सपेंडिचर्स,
न्यू एक्सपेंडिचर्स ऑन करंट बेसिस, यानी जो आपके मामूल के अखराजात हैं उनके लिए आपको अगले साल में क्या चाहिए होगा, और आपको नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर कोई स्टार्ट करने हैं तो आपको क्या चाहिए होगा। अगर एक अस्पताल ने 2 वार्ड और ऐड करने हैं तो उसको नेक्स्ट ईयर कितने पैसे उसके लिए चाहिए होंगे, और अगर 2 वार्ड वो 5 सालों में कंप्लीट होने हैं तो आप हमें 1 साल का तो बताएं। 20 करोड़ के बनने हैं तो क्या आपको सिर्फ 5 करोड़ चाहिए इस साल 2 वो वार्ड्स के लिए या क्या? थिंग्स लाइक दैट, न्यू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और आमतौर पे जो करंट एक्सपेंडिचर होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर साल सैलरीज ने बढ़ना है, फिर इन्फ्लेशन होती है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें ज़हन में रख के एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं। Estimates, I said estimates. So keeping in view the past actual expenditures, current trends and future expectations, all the departments prepare estimates in minute details. And the budget is divided into 2 main sections, the revenue budget and the capital budget. जैसे हमने पहले बात की, वो जो ongoing है वो आपका रेवेन्यू बजट हो जाएगा, मामूल के जो आपके दूसरे अखराजात हैं कैपिटल के, यानी आपने चीज़ें खरीदनी है वगैरह वगैरह, दैट वुड बी वन पार्ट ऑफ द बजट। तो हर महकमा जो है वो एक कैपिटल बजट बना लेता है और एक रेवेन्यू बजट बना लेता है। फिर एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है एनुअल डेवलपमेंट प्लान। पूरी गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, वो हर साल नए नए प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराती है और उसको वो बड़े एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाए जाते हैं। वो प्लानिंग कमीशन है, उसकी सारी मशीनरी है, वो उनको प्लान्स के खद्दोखाल सबमिट होते हैं, ख़ास तरीक़ाकार के तहत वो उनको देखते हैं, फिर अप्रूव करते हैं। तो इस तरह पूरा डेवलपमेंट प्लान अब जो कंट्री का है उसमें वो जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो जाते हैं, हर मिनिस्ट्री अपने अपने अप्रूव प्रोजेक्ट्स को उसमें इंक्लूड करवाने की कोशिश करती है। सो द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द ईयर आर आउटलाइन इन एनुअल डेवलपमेंट प्लान। तो एक हिस्सा बजट का हो गया आपका रेवेन्यू कैपिटल बजट, और दूसरा हिस्सा आपका हो जाएगा एनुअल डेवलपमेंट प्लान का। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे जो आप नए करना चाहते हैं, जो अखराजात आने हैं, उनका आपने जिक्र किया और उनको इंक्लूड कर दिया, समाप्त कर दिया। इट इंडिकेट्स द फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द टारगेट्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स, यानी जितनी भी स्कीम्स इस वक्त चल रही हैं या नई आनी है और उन पर थोड़ा बहुत काम होना है, उन दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं नेक्स्ट ईयर वो कंसोलिडेट हो जाती हैं इसमें। It is prepared by the Planning Commission in consultation with the Ministry of Finance and provincial governments. क्योंकि कई दफ़ा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो ADP है उसमें कुछ असिस्टेंस होने चाहिए होती है फेडरल गवर्नमेंट की, या कोई जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो एनुअल डेवलपमेंट प्लान की हाई लेवल की जो मीटिंग्स होती हैं टू फाइनलाइज इट बिफोर द बजट, उसमें दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दी provincial government also, not just the federal representatives. और तरीक़ाकार इसका क्या होता है, बजट को बनाने का, डेवलप करने का क्या तरीक़ाकार है? Prior to determining the size of the plan, the Ministry of Finance determines the resources available to undertake development projects. ज़ाहिर है आपके पास पैसे होंगे तो आप डेवलपमेंट करेंगे, तो पहले आप ये तो देखें आपके पास कितने पैसे हैं। This exercise is completed in coordination with the government agencies concerned, which are those Central Board of Revenue and Provincial Finance Departments. So main revenue जहाँ से आता है वो Central Board of Revenue है, क्योंकि वो सारे taxes collect करते हैं। और जो public savings होती हैं वो आपको मालूम होती है फाइनेंस डिवीजन को कि कौन से बैंक में कितनी सेविंग्स हैं और उनसे उनका क्या असर होगा। So, following are the principal components of resource estimation. आप देखते हैं कि आपके पब्लिक सेविंग्स क्या हैं, नेट कैपिटल रिसीट्स क्या हैं, फॉरेन इकोनॉमिक्स असिस्टेंस क्या, और
deficit financing. Deficit financing can be considered a source of funding the budget also. कि जी ये हमारे टैक्सेशन और दूसरी चीज़ों से पैसे आ रहे हैं, ये हमारा खर्चा है, लेकिन इसमें कुछ गैप रह गया, खर्चा ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है. तो अगर फिर भी आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग. You are expecting that you'll be able to meet that deficit from somewhere. The revised estimates for the current year are also prepared. यानी जो इस वक्त चल रहा है साल, उसके latest position क्या है वो. These estimates include provision for authorized expenditure which is expected to be incurred before the close of year. यानी साल खत्म होने तक रवा साल अगले साल का बजट बना रहे हैं, लेकिन आप ये भी एस्टिमेट कर लेते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, अक्टूबर दिसंबर, कि अगले साल तक कितना खर्चा हो जाएगा. द प्रपोजल्स सबमिटेड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज आर रिव्यूड. तो आप एक रिव्यू फाइनेंस डिवीजन में इन सब प्रपोजल्स का होता है. The review of the budget proposal varies greatly depending on whether the expenditures are fixed. Most of the current budget is treated as fixed. यानी चूंकि आपने एक खास बजट पिछले साल बनाया था और इस साल आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप अगले साल का आप बना रहे हैं, तो करंट बजट के साथ आप इतना प्ले नहीं होता उसमें, आप उसमें इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते. तो इट इज़ मोर और लेस फिक्स्ड. It is not reviewed in detail unless there is an extraordinary change in the estimates from the previous year. हाँ, अगर किसी ने एस्टिमेट्स में अपने ये कह दिया जी कि हमने तो करोड़ रुपया खर्च करना था इस साल के आखिर तक, लेकिन हम सिर्फ 5 करोड़ कर पाएंगे, तो there's a huge difference. अगर 1 करोड़ का फर्क होता कोई बात नहीं थी. या किसी ने कहा जी हमने 100 करोड़ करना था, 200 करोड़ कर रहे हैं, ह्यूज डिफरेंस, डबल. तो वहाँ पे फाइनेंस डिवीजन विल गो इनटू द डिटेल्स. फिर द फाइनल stage of budget making. Budget proposal presented by the Ministry of Finance are then submitted to the Federal Cabinet. कैबिनेट की एक मीटिंग होती है, वो देखते हैं उनको कि क्या होगा, अगले साल का क्या बजट बन रहा है, और कई दफ़ा कैबिनेट उसमें काफ़ी चेंजेस लाता है. प्रो पीपल किस्म की चेंजेस एक्सपेक्टेड होती हैं. हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है या मिनिस्टर बैठा हुआ है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो ट्राई करते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स अकोमोडेट हो जाए, या जो उन्होंने सियासी वादे किए हैं वेलफेयर के वो इनकॉर्पोरेट हो जाए. The budgetary proposals are considered in the cabinet and then approved for presentation to the parliament. ये हो गया. अब the final thing, parliament को जाएगा बजट आपका. Among the fundamental principles of democracy is the power of the purse vested in an elected parliament. Concomitant to this right is the responsibility on the legislature to ensure that the budgetary measures it authorizes are fiscally sound and in line with the needs of citizens. तो क्यों जा रहा है ये पार्लियामेंट में? पैसे का मामला है, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये डेमोक्रेसी का कि ये पार्लियामेंट ही कर सकती है, वही वोट कर सकती है कि किस चीज पर कितना पैसा खर्च होना चाहिए. और उन्होंने ये इंश्योर करना है कि पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं और सही कामों पर हो रहे हैं. And they are meeting the needs of the citizen. So that social welfare thing, the pro-poor element has to come in. This requires informed debates and scrutiny of the proposed budget. इसीलिए जब बजट पेश कर दिया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर कर देता है असेंबली में, उसके बाद एक और लंबी चौड़ी डिबेट उसके ऊपर होती है कि ये इतने पैसे इस काम के लिए आपने रखे हैं, इस्तेमाल होंगे नहीं होंगे, इतने ज़्यादा क्यों रख लिया आपने, क्या ये मत जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्या ये सिटीजन्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी ज़्यादा चीज़, इसको ज़्यादा पैसे क्यों लिए, क्यों नहीं मिले, यू नो थिंग्स लाइक दैट. और आमतौर पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई बाय द ऑपोजिशन ऑन
जो पैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए रख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए रख रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए रख रहे हैं, या लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए रख रहे हैं, या जो ट्रैवल अब्रॉड पे खर्चे होते हैं, these become very sensitive issues during parliamentary debates. But finally, the budget gets passed and it becomes the budget for the next year of the country. अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं local governments के बारे में. The main purpose of introduction of the local government system, we had a new local government system, devolution of powers हुई थी 2000 में. एक पूरा एक्ट है जो इसको कवर करता है. Its main purpose was to empower the people at the grassroots level and transfer power from the elite to the masses. This system of grassroots democracy envisaged yielding new political leaders. तो ये जो सिलसिला चला प्रेसिडेंट मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, इसमें यह कहा गया कि हमारा ये लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराने का बेसिक मतलब ये है कि हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी लेकर आए, कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप नीचे से लेकर ऊपर चले और लोगों को उनके घर बैठे सहूलियात मुहैया हों ग्रास रूट लेवल पे. The essence of this system was that the local government would be accountable to the citizens for all their decisions. और चूंकि लोकल गवर्नमेंट बहुत करीब है, खासतौर पे जो आपकी यूनियन काउंसिल है और लोग वहाँ पे सर्विसेज चाह रहे हैं, तो लोग अगर वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों के, तो वो उनका मुहासबा करेंगे, वो उनको रिस्पॉन्सिबल करेंगे, अकाउंटेबल करेंगे. जो भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, काम कर रहे हैं और उन्होंने सर्विस डिलीवरी देनी है, उनको वो काबू करके उनसे काम करवाएंगे. The new local government plan was an effort on the part of the military government to lay the foundation of an authentic and enduring democracy. The plan expanded the franchise by reducing the voting age from 21 to 18 years, while 50% of the seats in union councils were reserved for the women. Overall, 1/3 और यूनियन काउंसिल्स में इन्होंने चाहा कि 50% तक आ जाए. और बहुत इंपॉर्टेंट, 21 साल से कम करके 18 साल की एज पे आप वोट कर सकते हो. सो अ वेरी मेजर स्टेप, some very major steps. The new system provided a 3-tier local government. आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, उसके बाद आपकी तहसील गवर्नमेंट होगी और फिर यूनियन काउंसिल पे एडमिनिस्ट्रेशन होगी. ये 3 टियर एनविसेज हुए. तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने क्या करना था? पहले डिस्ट्रिक्ट असेंबलीज नहीं होती थी. सो द प्लान एनविसेज अ डिस्ट्रिक्ट असेंबली. जैसे हमने दूसरे मुल्कों में देखा कि तकरीबन हर टियर पे एक असेंबली होती है, कहीं मेयर इलेक्ट होता है, कहीं किसी और तरीके से वो चलाते हैं, ज़्यादा पावर्स एग्जीक्यूटिव्स को मिल जाती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, सिविल सर्विस वाले वगैरह वगैरह, डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल थे. So the plan envisaged a district assembly comprising chairman of all union councils in a district. तो यूनियन काउंसिल पे एक छोटा सा सिलसिला होगा, वहाँ भी एक कमेटी बनेगी, असेंबली बनेगी, उसका एक चेयरमैन होगा और उन तमाम चेयरमैन जो होंगे वो मेंबर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट असेंबली के, और वो कुछ काम करेंगे और वो इलेक्ट करेंगे अपने चेयरमैन को, और वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट नाजिम कहलवाएगा. द असेंबली वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग, अप्रूविंग बायलॉज, टैक्सेस, एनुअल डेवलपमेंट प्लान एंड बजट. वही चीजें जो प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट करती है. द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंसिस्टेड ऑफ द जिला नाजिम एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो हमने डिस्ट्रिक्ट असेंबली की बात की, तो जहां तक एग्जीक्यूटिव का तल्लक है, डिस्ट्रिक्ट असेंबली के लेवल पर वो नाजिम होता है, जिला नाजिम. इसी तरह तहसील पे तहसील नाजिम थे, जिला नाजिम, और उसकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो अफसरान जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, चाहे वो डीसीओ हो या एसपी हो या हेल्थ ऑफिसर हो या डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स हो, जो भी उनका सिलसिला है, वो तमाम अफसरान along with the Nazim are
the executive of the district government. The district government was responsible to the people and the provincial government for improvement of governance and delivery of services. तो इस असेंबली ने और नाजिम ने और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर इम्प्रूव करनी है गवर्नेंस और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द पीपल, एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. People can ask them and will ask them questions. So this was envisaged. District administration consisted of district offices, including sub-offices at tehsil level, which were to be responsible to the district Nazim, who was assisted by the district coordination officer. So DCO का concept वहाँ दिया गया. अब district coordination officer becomes a fairly powerful person in this whole scheme of things. The district coordination officer was appointed by the provincial government and was the coordinating head of the district administration. So he may not be called a deputy commissioner, but he is still the coordinating head. And perhaps in a way, coordinating more departments than what he did before, because a number of departments were devolved down from the provincial to the district level. The Zilla Nazim was accountable to the people through the elected members of the Zilla Council. जिला नाज़िम के ऊपर जिला काउंसिल का पूरा कंट्रोल. द जिला काउंसिल हैड इट्स सेक्रेटेरिएट अंडर द नायब जिला नाज़िम एंड हैड अ सेपरेट बजट एलोकेशन. तो एक नायब जिला नाज़िम भी इनमें इन्विसिट किया जो कि सेक्रेटरियल वर्क करेगा ज़्यादा, और वो एक सेक्रेटेरिएट कायम होगा और उसकी एक प्रॉपर बजट एलोकेशन होगी. तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दिया गया. Then we come to the next tier of the government, the tehsil administration. This is the middle tier. The tehsil had tehsil municipal administration headed by the tehsil nazim. इसका भी उसी तरह नाजिम जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जिला नाजिम था. A tehsil council comprising union councillors from the tehsil would perform functions at its level. यानी यूनियन काउंसिलर्स आ जाएंगे तहसील के और वो वहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्टेड ऑफ अ तहसील नाजिम, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर, तहसील ऑफिसर्स, चीफ ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द लोकल काउंसिल सर्विस. यानी आपने तहसील लेवल पर भी एक पूरा सेटअप दे दिया. और उसमें जैसे आपके पास वहाँ डीसीओ था, यहाँ पे आपके पास म्यूनिसिपल ऑफिसर होगा जिसको आप तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर का नाम दे रहे हैं. फिर तहसील के लेवल के उन तमाम महकमों के ऑफिस जिनके हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एंड अदर ऑफिशियल्स, चीफ ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ द लोकल काउंसिल सर्विस. यानी मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए चीफ ऑफिसर्स बना दिए जाएंगे और फिर उनका सपोर्ट स्टाफ भी होगा. तो एक पूरा जो डिस्ट्रिक्ट में निज़ाम है उसको रेप्लिकेट कर दिया गया. एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम जो डिस्ट्रिक्ट पे था उसको फुली तकरीबन रेप्लिकेट कर दिया गया तहसील लेवल पर. सो दिस वाज एन इनोवेशन दैट द तहसील बिकेम मोर पावरफुल with more subjects to deal with, especially the municipal aspect, very important. And that is where a lot of taxes also get generated. The Tehsil municipal administration was entrusted with the functions of administration, finances, and management of the offices of local government and rural development, divisional district, Tehsil and lower levels. तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो ऑफिस इसमें है वो है, खैर वो तो काम कर रही हैं उन्होंने ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी टैक्सेस भी रेज करने हैं, फाइनेंसेस को भी चेक करना है, डील करना है, और वेरी इंपॉर्टेंट लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट. ये गवर्नमेंट यहाँ लिखा गया, इट शुड हैव बीन डेवलपमेंट. तो ये जो ऑफिस था लोकल गवर्नमेंट और रूरल डेवलपमेंट का, it is responsible for coming up with development plans for the district and for the tehsil.
सो ये डेवलपमेंट का एस्पेक्ट तहसील के लेवल पर लाकर इंटीग्रेट कर दिया गया, which was good. I mean, it's closer to the people. और ये जो रूरल और रूरल गवर्नमेंट का जो सेटअप, रूरल ये लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट का सेटअप है, दिस इज अवेलेबल ऑल अलोंग कमिश्नर से लेके from the divisional level to the district level to the tehsil level. So tehsil became a more powerful tier than what it used to be, and under the new system of things there was unfortunately a certain tussle between the provincial governments and the devolved districts governments as envisaged in this, because some Zilla Nazims became very powerful, and the MPAs, the members of the provincial assemblies of those constituencies, did not like that. Look here, I have no powers, but this man has a lot of powers. Although I am MPA, I don't have any direct powers. And this was in fact which proved to be a great stumbling block in the success of this new local government system introduced by the military government. This was probably not envisaged in proper perspective, that how would the politicians at the provincial level to react to such a setup, where a very powerful district Nazim is calling the shots, and may or may not give much importance to the local MPA, especially if the local MPA was from a party with which the district Nazim did not have much sympathies. And last but not least, perhaps the most important and grassroots level of the district government tier, and it's always been there. This was nothing new. The union councils have been there since the time of Ayub Khan, since the 60s. Union councils generally are a collection of a few villages, could be 4 or 5 villages or more, and that area is supposed to be a union of, let's say, villages, and there would be a council elected by those villagers, and that council is supposed to be very receptive to the needs of the people and help them in every possible manner, because they are the neighbors of those people. Maybe most of the councillors, some of the councillors would be known very well to each and every one in those villages. So a lot of responsibility at the union council level on these councillors. So the lower tier, the union council, would have its own chairman and 26 councillors. 26 councillors banne the. So 26 councillors would get together and make and comprise the union council and elect a chairman. So once you have this setup, a proper democratic setup, with the councillors being elected first and then the chairman of the union council, it was expected that such a setup would perform well and cater to the needs of the people. Then some community boards were also set up at this level. Citizen community board, at different levels actually, but they were also supposed to hold, to become pressure groups on the administration, whether it be local or otherwise, and hold the administration responsible, make sure that service delivery is proper and people are getting what they have been promised.
Members of the Union Council were to be elected directly, as I said before, very important, by adult franchise, and would also act as the electoral college for reserved seats. So the question of reserved seats also, if there are some minorities, they get represented. The main function of the Union Council was to undertake local development projects and monitor citizen rights, security and services. Development projects तो एक साइड पे हो गए ना. Okay, we need a road, गली को पक्का करना है, सूरज खराब है, पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी है, डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, कोई एग्रीकल्चर के लिए हमें गाइड नहीं कर रहा, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट सारे कहाँ हैं, लाइफ स्टॉक का कौन ख्याल रख रहा है हमारे. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स, दीज सर्विसेज, basic for rural life, basic services required at the Union Council level or at the village level. The Union Council, elected by the people, along with its chairman, would look after this and ensure that proper services are being provided. Not to speak of the revenue and the police departments. They have to be reined in. Citizen rights, security, especially when you have a culture of a feudal culture still in most of the country. At the rural level, you definitely need someone to take guardianship of the citizens' rights. And when you have so many elements trying to destabilize law and order, you need some agency to bring about security, to look after security concerns and ensure law and order. So this is what was envisaged at the Union Council level. The Union administration was to be a corporate body covering the rural as well as urban areas across the whole district. Very interesting. Not just the rural areas, but also the urban areas would have their unions and their representatives. So the Union Nazim would be the chairman, there would be a Naib Union Nazim and 3 union secretaries or Baki ka staff. The Union Nazim was the head of the Union administration and the Naib Nazim was the deputy to the Union Nazim during his temporary absence. So the Naib Nazim would take over when the Nazim is not there. The Union secretaries coordinated and facilitated under the supervision of the Union Nazim. So ये structure था, जो administrative structure था. लेकिन basically बात वही थी कि आपने ग्रास रूट लेवल पे सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना है, लॉ एंड ऑर्डर को सही रखना है, आपने सिटीजन राइट्स को गार्ड करना है, आपने इंश्योर करना है कि ब्यूरोक्रेसी का, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो काम है वो कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं. अगर कर रहे हैं तो फिर अच्छी गवर्नेंस हो रही है. लेकिन ये किस हद तक मिलिट्री गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कामयाब हुआ, दिस इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क. थैंक यू वेरी मच.